Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lesson. So hi friends, welcome to today's session. So today we are going to start with that is how to use the templates, that is create templates and use templates in the Word document. So before moving forward, let me tell you about the exciting offer for all CBC classes from class 6 to class 12 students. Yes, it is the Ask a Doubt campaign. Yes, obviously. If you are going to ask the 5 doubts, you are going to have the free subscription, free trial subscription of the Unacademy Plus. So that is बात की है, you can ask any 5 doubts related to the subject in the YouTube, and obviously you can download the app now, and yes, you can use my referral code that is TD Live to have the particular subscription also. And yes, obviously this offer is valid for the particular time limit, that is it is going to start from the 4th of July 2021 and it is going to end on the 9th of July 2021. So just I will repeat, you have to ask the 5 doubts. आपको 5 doubts पूछने हैं during your YouTube sessions, and you are going to have the 7 days free trial of the Plus subscription. The students concentrate on lectures and you can ask the doubts related to your subject. Okay. So today we are going to start with the class 10 information technology code 402 under NSQL. So now we are going to see that it's chapter 3 of the part 3, that is vocational skills, create and use templates. Yes, how to use the templates in the particular Word documentation also, or you can use the same thing for the openoffice.org, or if you are using Ubuntu operating systems, you can use the LibreOffice also. Okay, so जो कुछ भी आपका operating system है या फिर जो कुछ भी आपका setup है, based on that you can use your particular Microsoft Office document, whether it is LibreOffice or OpenOffice.org. So students, we are going to see in the today's lectures, firstly the introduction to the templates, then what are the particular templates, then advantage of the templates, then using the predefined templates, and lastly creating and using the particular templates. ठीक है, आज हम लोग ये सब कंटेंट्स आज के लेक्चर में देखने वाले. So before moving forward, let me tell you about, you have to study about the styles in a document. That is how we are going to the styles in a document. हम लोगों ने वो पहले भी लेक्चर देख चुके हैं. उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि हाउ टू यूज द इमेजेस अपने डॉक्यूमेंट में कैसे यूज करनी है, हम लोग वो भी देख चुके हैं. नाउ इन द पर्टिकुलर वर्ड डॉक्यूमेंट वी आर गोइंग टू हैव दिस सेशन, दैट इज हाउ टू यूज द पर्टिकुलर टेम्पलेट हियर. ओके, सो लास्ट 2 सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, दैट इज यूजिंग स्टाइल्स एंड वर्किंग विद द इमेजेस इन द Microsoft Office. So now this session is somehow little different. Why? Because in this session we are going to talk about the creating and using the templates in the Microsoft Office Word. As you must know the simplest word of the template. Template का meaning क्या होता है? It is meaning something that is based on whose design or the similar items can be created. Okay, एक particular design होता है और उसके बेस्ट क्या होता है? The similar items we can create there. That's why these things are called as the templates here. Okay, so because before we are going to start, we are going to have the particular blank document, and in that blank document we are going to see how to use the particular templates here. Okay, so एक particular blank document होगा और उसके बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे. बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल, दैट इज प्रैक्टिकली करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स जो है वो अंडरस्टैंड करके लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is mean by the templates? That is, okay, knowing the templates, as I have said before, इसमें क्या होता है, जनरेट टेम्पलेट्स में एक पर्टिकुलर ब्लैंक डिजाइन होती है और बेस्ड ऑन दैट डिजाइन व्हाट वी कैन डिजाइन आवर ओन टेम्पलेट्स and our own documents also.
ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑनलाइन हमारे पास एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट, उसके ऊपर एक टाइमलाइन होती है। हम लोग क्या करते हैं, वो टाइमलाइन में हमारी कंटेंट ऐड करते हैं। वैसे ही हमारे पास क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, और बेस्ड ऑन दैट टेम्पलेट्स वी कैन राइट, वी कैन क्रिएट आवर ओन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। सो एंड इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू सी दैट इज हाउ टू यूज द टेम्पलेट्स इन अ डॉक्यूमेंट। अभी टेम्पलेट्स हम लोगों ने क्रिएट किए, या फिर टेम्पलेट्स हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी करके लिए। द क्वेश्चन इज हाउ टू यूज द टेम्पलेट्स इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो चलिए वो थिंग हम आज लोग हम सब स्टडी कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द टेम्पलेट्स? देखिए, a document template is a special type of empty document that stores the formatting features such as styles, header, footers, macros, and other such details like that. Okay, based on a document template, many documents can be created. एक document template पर हम लोग बेस करके क्या कर सकते हैं, बहुत सारे documents जो है वो create कर सकते हैं. So that's why we can have once create and use multiple times. This thing can be also applied to our templates. Okay, so now we are what we are going to do in today's lecture, we are going to see how to create the templates also and how to use these templates also. इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूजर डिफाइंड टेम्पलेट्स कैसे कर रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे, और उसके बाद उसके साथ साथ ही हम लोग क्या करेंगे, जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो लोग भी हम लोग उस लाइब्रेरी को यूज कर देख सकेंगे। ठीक है। So now using one template, many documents can be created. Obviously, as I have explained earlier, एक टेम्पलेट यूज कर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए, बाय यूजिंग द वन पीपीटीज डिजाइन वी कैन क्रिएट द मल्टीपल पीपीटीज आल्सो। वैसे ही वो जो रूल है वो सेम रूल हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू सी that you can create the templates for the documents also, and spreadsheets and presentations in the Microsoft Office also. Like you can use the templates for the PPTs also. PPTs के लिए भी हम लोग अपना खुद का एक टेम्पलेट बना सकते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके लिए भी हम लोग एक अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं। अगर हम लोग एक्सेल शीट्स भी हैं तो उसके लिए भी हम लोग अपना खुद का टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लाइब्रेरी में पहले से ही टेम्पलेट्स अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, वो यूज कर सकते हैं। Now, once a template is available, what you can say that you can create as many as documents based on it, and you can add text or you can add other information based on the particular need of your documentation. देखिए, अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन के नीड के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टेम्पलेट में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। सो जनरली जो कॉर्पोरेट लेवल्स के कुछ टास्क होते हैं, उसके बाद अगर समझो आपको कुछ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन करना है, या फिर कुछ पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल देना है, तो एट दैट टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, ये सारे टेम्पलेट्स जो है वो यूज कर सकते हो। यस, ऑब्वियसली। नाउ this will become clearer to you in the upcoming session, that's where you are going to learn a predefined templates as well as how to use the user defined templates also, that is creating a new templates based on the previous one also. Now we can say that a template is a what? It is a blueprint document. It is going to contain the information features like styles, headers, footers, macros, and so on based on the actual documents. And it can be created once, and which will be automatically have the all features of the template which is going to be used in a particular document. Okay, so likewise we are going to use the particular templates. Okay, so just try to understand that is one note I have to tell you, that is templates are used for generic content that are going to intend on using the template. एक generic content होता है और based on that generic content we can create the template. For example, अभी आप लोग कुछ कोई कंपनी का इनवॉइस बना रहे हो, एक पर्टिकुलर बिल बना रहे हो, तो वो बिल क्या रहेगा, यहाँ पर एक generic content रहेगा. And yes, obviously, while these documents are used for storing some specific information, so that templates are going to be used in that particular documentations also. So जितने चाहिए आप लोग एक टेम्पलेट यूज कर उतने डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो.
So that's why we are going to say that the templates are going to be used to create once and use many times here. So now we are going to see the advantages of the templates. Now the templates are very useful in the document, as I have said earlier, and these documents are going to be used for the different purposes. So हम लोग पहले क्या देखेंगे, इसके advantages देखेंगे. देखिए इसका पहला advantage क्या है, the templates are simplify the document creations. Now here since the formatting features are already predefined, यहाँ पर formatting के features जो है वो क्या है, पहले से ही प्रीडिफाइन किए होते हैं. सो इससे क्या होता है, हमारा जो फॉर्मेटिंग का टाइम जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. सो दैट्स व्हाई द टेम्पलेट्स आर इजियर टू अप्लाई एंड ऑब्वियसली एट द सेम टाइम दे इंक्रीज योर efficiency. Okay, this is the first advantage of the using the particular template here. Now next one is the templates are going to save the time and money. Yes, obviously templates once created, they are going to save lots of time and money here. Okay, so now we can utilize the ready-made templates. हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट्स जो है ये वो यहाँ पर हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट इट इज वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड फॉर यूजिंग द टेम्पलेट्स इन योर डॉक्यूमेंटेशन. एंड देन द क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द ग्राउंड कैन बी वेरी मच इजियर. सो इससे क्या होता है, अपना जो टाइम होता है और जो मनी होता है वो बच जाता है. इट इज गोइंग टू सेव द टाइम एंड मनी एज यू आर गोइंग टू हैव द रेडीमेड टेम्पलेट्स already available in your particular documentation. Then next one is the templates are going to offer you consistency and the clarity. Now the templates are going to ensure that the whatever the documentation you are going to define, or whatever the layouts, whatever the margins, whatever the look and feel you are going to use, that will be up to the some standardization. एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है और उस स्टैंडर्ड पर बेस्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. These are nothing but the sum of the advantages of templates. इसके अलावा भी हम लोग क्या कह सकते हैं, our efforts are going to be less. एक टेम्पलेट हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, वो टेम्पलेट क्या कर सकते हैं, हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं. That will be also the advantage of using the templates. Yes, अगर कोई novice है, अगर कोई new user है who does not know how to use the particular invoice, or how to define the particular invoice, and he or she is having very less time. So and in that case what we can say that we can have the particular templates. अगर रेडीमेड टेम्पलेट्स है वो आप लोग फिर से बार बार यूज कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है उसको एडिट कर सकते हैं. So चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, that is how to use a predefined template and how to create a template. So okay, now in this case instead of having the particular theory, we will see that is how to use the predefined templates and creating a particular template and using and apply these templates in your own document. So I will just start with the Microsoft Office Word. ठीक है, now I am going to open the Microsoft Office Word. Then देखिए अभी यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं. आई हैव टेकन वन ब्लैंक डॉक्यूमेंट हियर. अभी मुझे क्या करनी है, देखिए स्टूडेंट्स, मुझे एक पर्टिकुलर टेम्पलेट लेना है. सपोज अभी मेरा टास्क जो है, मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर रिज्यूम में लिखना है या फिर एक पर्टिकुलर न्यूज लेटर लिखना है. देखिए ये जो पूरे दिख रहे हैं ये क्या है, इनबिल्ट टेम्पलेट्स है. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनबिल्ट टेम्पलेट्स है, एंड यू कैन सर्च फॉर द ऑनलाइन टेम्पलेट्स आल्सो. So in this way we can use the different templates here. तो अभी यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है वो अवेलेबल है. नाउ यू कैन सी देम वन बाय वन. देखिए यहाँ पर क्या है, पहले एडजेसेंसी लेटर है, उसके बाद एडजेसेंसी रिपोर्ट है, एडजेसेंसी रेज्यूमे है, देन एपोथेकेरी लेटर्स है, देन एपोथेकेरी न्यूज लेटर्स हैं, उसके बाद एपोथेकेरी रेज्यूम्स हैं, उसके बाद ब्लॉग स्पॉट्स हैं, देन क्रोनोलॉजिकल लेटर्स हैं, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम्स. नहीं, उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, इसेंशियल लेटर्स है, इसेंशियल रिपोर्ट्स है, इसेंशियल रेज्यूमे है, उसके बाद ओरिजिनल लेटर्स, ओरिजिनल रिपोर्ट्स है, ओरिजिनल रेज्यूम्स है.
Then we can see that there is some red and black letter there, then student reports, then timeless letter, then timeless report, then timeless resume, then word 2003 look is there, and word 2010 is its look is there. ठीक है, ये डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है हमारे पास मौजूद है। ये सब जो है वो इनबिल्ट है बाय यूजिंग दी माइक्रोसॉफ्ट। अभी यहाँ पर एक और टेम्पलेट है जो हम लोगों ने मैंने रिसेंटली यूज किया था, दैट इज ब्लैक एंड रेड एनुअल रिपोर्ट। सो आई विल जस्ट ओपन इट हियर। देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल गया, डायरेक्टली रेडीमेड सारे के सारे कंटेंट्स मिल गए। देखिए यहाँ पर हेडर्स डायरेक्टली इंपोर्ट कर दिए गए हैं, फुटर्स भी यहाँ पर मौजूद है। नहीं, यहाँ पर फुटर्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, वी कैन ऐड दिस। देन यू कैन हैव द पर्टिकुलर format there. Some headers say, then page number is there, then some contents are there, and then some particular data is there। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अभी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक डेमो ऑफ टेम्पलेट्स। ठीक है, थोड़ा सा अभी इसको हम एक्सपांड करेंगे। हम लोग जैसे चाहिए वैसे क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर टेम्पलेट्स के मॉडिफाई यूज कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग द टेम्पलेट्स। Now, for example, I am going to write here class 10th. Okay, that is sufficient. Then I will write here something like that. How to use templates in create and use templates information technology, right? Code 402 and NSQ. Likewise, we can have some particular template. So we can write the name of company, telephone number, address, and so on things. Now here in the table of contents, suppose I am going to write like that. Here is what first one is introduction. Then second one is what are templates. The next one is I will write like that. Creating the templates using the templates. Okay, पूरा डिलीट हो रहा है क्योंकि मैंने इसको पूरा सिलेक्शन किया था। अभी यहाँ पर सिंपली क्या कर देती हूँ, मैं पूरा सिलेक्ट नहीं करूंगी। Creating template using the templates and suppose building your own templates. Okay, likewise अभी पेज नंबर जो है हमारे जरूरत के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं as per your contents. Okay, and lastly I will delete all this last second. Okay, likewise what we can do, we can use the particular templates. Suppose this is on the page number 2. Then next one is what on the page number 3. Likewise suppose I am going to edit these things. ये हो गया पेज नंबर 3 का। उसके बाद हम लोगों ने कर लिया, सपोज पेज नंबर 4 है। आई एम गोइंग टू यूज द अंडरस्कोर यूजिंग विच आई कैन हाउ द पर्टिकुलर कंटेंट्स। ठीक है, हम लोगों ने बहुत इजीली कंटेंट्स जो है क्रिएट कर लिए। अब लास्ट को हम लोग देखेंगे फाइल कैसे सेव करनी है। सो पहला पॉइंट कौन सा था हमारा, इंट्रोडक्शन था, राइट। नाउ व्हाट आर द टेम्पलेट्स, sorry, what are the templates? Templates are the blueprints for a document. Then next one what we are going to see is that is how to add the contents we have seen. Okay, अभी बाकी का जो है हम लोग डिलीट कर देते हैं, that is not needed here.
किसों का अभी आज की डेट के लिए हम लोग ये लिख लेते हैं, सपोज टुडे इज 6th of July and enter here. Okay, so likewise we have selected this particular template here. Now next one is what we are going to use is, ठीक है, अभी इतना रहने देते हैं, बाकी का जो डिटेल्स है आपको इतना नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, जस्ट वी आर सीइंग द डेमो हाउ टू यूज द पर्टिकुलर टेम्पलेट. Okay, and now I will save my file in a documents. टेम्पलेट यूसेज नाम से मैंने वो डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो सेव कर दी. ओके, सो लाइकवाइज आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर templates here. So easily we can use the inbuilt templates which are available in Microsoft Office Word. Abhi suppose I am going to take file new, then I am going to take the particular what I will say of there are so many templates. हम लोग इसमें से कुछ examples देखेंगे. ठीक है, Word 2010 book हम लोग इसको देख लिया. यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, इंट्रोडक्शन टू वर्ड 2010 लुक. अभी ये हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिंपल है. हम प्रोनाउन वाला देखते हैं, वर्ड 2003 लुक. देखिए, इफ यू सी हियर एंड द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, प्रोनाउन वाला क्लोज कर देते हैं. अभी कौन सा था, वर्ड 2010 लुक एंड वर्ड 2003 लुक. देखिए यहाँ पर आप लोग बाय डिफॉल्ट देख सकते हैं, ये दो टेम्पलेट जो क्या बता रहे हैं आपको. ओ सॉरी, दिस इज नॉट वर्ड, दिस इज वर्ड. जो अपने पुराने वर्ड्स की जो फॉर्मेट्स, दैट इज वर्ड 1997 टू वर्ड 2003, तो उसके लुक्स जो थे पहले वो कैसे थे वो आपको दिखा रहा है. दैट इज बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, वो पुराने के टेम्पलेट्स जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के, वो हम लोग यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए, आप लोग फॉन्ट देखिए पता चलेगा, बाय डिफॉल्ट उसका फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो था 2003 का. और यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो देखिए इसका फॉन्ट होता है कैलिब्री बॉडी 11 फॉन्ट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 का लुक है. So these templates we can also use here. Okay, just I was trying to show you how many types of templates are there. ठीक है, एक और टेम्पलेट हम लोग ट्राई करके देखते हैं. कौन सा करें, ठीक है, स्टूडेंट रिपोर्ट. ठीक है, ये जो है इनबिल्ट टेम्पलेट है, हम लोग ये देखेंगे. दैट इज रिपोर्ट सब टाइटल and whatever they add the table of contents, then add the bibliography. okay, इसमें तक कुछ लिखने के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और नया टेम्पलेट लिखते हैं, एडजेसेंसी रिज्यूमे. ठीक है, ये लोग क्या करते हैं जनरली जॉब के लिए, अगर आप लोग कुछ रिज्यूमे लिख रहे हो तो एट दैट टाइम ये पर्टिकुलर एक रिज्यूमे का फॉर्मेट हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, सपोज आई एम राइटिंग नेम John is there and yes resume name is there. okay, तो what particular phone number है suppose यहाँ पर I will write is like that, just एक पर्टिकुलर जैसा कोई तो फोन नंबर हम लोगों ने लिख दिया. देन अभी उसका ईमेल एड्रेस जो है abc@, suppose I'm going to write gmail.com. then address is Washington Street. okay, there is no any website here, no problem. Objectives to gain a job which will be beneficial for my skills and improvement. इसे कुछ तो हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्टिव लिख दिया. स्पेलिंग मिस्टेक होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बाय डिफॉल्ट स्पेलिंग मिस्टेक जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है रिमूव करके देता है. नाउ सपोज एजुकेशन इज देयर, सो टाइप योर स्कूल नेम, ABC स्कूल. आई एम गोइंग टू राइट. ओके, एक पर्टिकुलर स्कूल नेम मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ. then the type the completion date and type the degree. so suppose I am going to write completion date is 6 June. likewise, okay, 6/6/2021 and type the degree. The students have completed the SSC. okay, type the list of
accomplishment, suppose school topper, लाइकवाइज ऐसे मैंने कुछ तो लिखा। उसके बाद कुछ accomplishment और क्या होगा, winner of the chess tournaments, ठीक है। ऐसे एक दो हम लोगों ने क्या लिखते हैं उसके achievements कुछ लिखते हैं। Then experience is there. Okay, now the student is fresher, there will be no experience there. And if suppose the particular student has done the particular degree here, जस्ट मैंने देखिए एजुकेशन जो है यहाँ पर हाइड हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर कॉलेज से लेते हैं, सपोज एबीसी कॉमर्स कॉलेज, ठीक है। और स्टूडेंट ने कर दिया है, ठीक है, कॉलेज टॉपर हो गया यहाँ पर। इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल इट इज व्हाट, कॉलेज टॉपर, ठीक है। तो फिर प्रीवियस जॉब जो है उसका क्या था, सीए था। और स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या रहेगी उसकी, सपोज कुछ तो ठीक है, रैंडमली मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 12/4/2019 to 6/4/2020. Type the name of company XYZ Private Limited. ओके, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी उसकी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, कुछ है क्या नहीं है। तो फिर हम लोग जिस उसकी जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, लाइक ऑल द अकाउंट सेटलमेंट्स, ठीक है। ऐसे कुछ तो हम लोगों ने लिख दिया। और उसका स्किल्स जो है वो क्या है, likewise what we can say the skills are like team player, then quick learner, then और भी बहुत सारी skills जो है based on that student or based on that candidate we can write there. Okay, so easily we can have the resume written here. Suppose www.john.com ऐसे कुछ तो सेलेक्ट कर दिया हमने। जनरेट से कोई नहीं होती है पर्टिकुलर कैंडिडेट की, एंड टाइप द डेट, सपोज हम लोग आज अप्लाई कर रहे हैं या फिर हम लोग 2-3 दिन बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर उसकी डेट हम लोग डाल देते हैं, सपोज 8 जुलाई 2021 हम लोगों ने डाल दिया। सो हम लोगों ने इसको सेव कर दिया, सेव दिस फाइल एज माय रेज्यूमे। ओके, नाउ जस्ट ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिफरेंट फॉर्मेट में सेव कर देते हैं। चूज अ लोकेशन, आई एम गोइंग टू सेव इन द डॉक्यूमेंट्स हियर my resume, I am going to save it. Okay, अब ये सेव हो गया है। You can see here that it's how easily we have written some particular resume here by just using the inbuilt template of your Microsoft Office Word. So in this way we can so beautifully write down one particular content, and we can so easily write some particular data here by having the ready-made templates available. Okay, so एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। क्या रेज्यूमे हो गया, हम लोगों ने एनुअल रिपोर्ट का भी देख लिया था, वो दैट इज अ डेमो ऑफ द टेम्पलेट्स। देन एडजेसेंसी लेटर, ठीक है, लेटर देखते हैं और ब्लॉग पोस्ट भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी एक पर्टिकुलर लेटर जो है वो क्या कर रहा है, एक सेंडर जो है वो रिसीवर को सेंड करने वाला है, दैट इज टाइप द सैल्यूटेशंस हियर। देन what it is going to type the recipient's name, type the recipient's address, pick up the date here. ओके, ये सब जो है क्या है, ये डेवलपर की कंटेंट्स है, वो हम लोग क्या करेंगे, रेडीमेड जो अपने टेम्पलेट्स है वो यूज करने के बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो आज की डेट है, देन आई एम गोइंग टू राइट सम पर्टिकुलर नेम हियर, सपोज आई एम गोइंग टू राइट लाइक दैट। ओके, देन आई एम गोइंग टू राइट द सेंडर्स कंपनी, व्हाट आई हैव सेड हियर, XYZ लिमिटेड, राइट। उसके बाद उसका एड्रेस कर दिया हम लोगों ने वॉशिंगटन स्ट्रीट, ठीक है। टाइप द रिसिपेंट्स नेम, सपोज हमने लिख दिया सीईओ को, CEO of company, another company ABC, and address is, suppose I am going to write same the Washington Street में ही वो, and now type the salutation here, okay, dear
देखिए यहाँ पर आप लोग अपने कंटेंट्स लिख सकते हो बाय यूजिंग द सिंपल पैराग्राफ। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर XYZ लिमिटेड है, वो क्या हो गया डायरेक्टली यहाँ पर भी इंसर्ट करोगे, क्योंकि ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कंपनी दैट पर्सन इज गोइंग टू सेंड द पर्टिकुलर डेटा टू द पर्टिकुलर रिसीवर। ओके, सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू यूज द पर्टिकुलर टेम्पलेट्स। ठीक है, अभी ये हो गया। नाउ टाइम द क्लोजिंग, मतलब क्या, यहाँ पर क्लोजिंग सेलिब्रेशन जो होता है वो क्या करना है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अभी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, बाय डिफॉल्ट जो जॉन नेम लिख दिया था वो यहाँ पर आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, सेम जो थिंग थी हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी कर ली थी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए बाय डिफॉल्ट कौन सा आ गया, XYZ लिमिटेड आ गया, द नेम ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी। इससे क्या होता है, देखिए अब मैंने एक ही बार नाम लिखा है यहाँ पर XYZ लिमिटेड, और ये कहाँ पर कॉपी हो गए, यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको, आप लोग साइड बार में भी ये कॉपी हो चुका है। उसके बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो एट द एंड XYZ लिमिटेड जो है वो एट द एंड भी कॉपी हो गया है। और yes, you have seen here the name of the John is copied here also, John, and lastly here John also. ठीक है, so likewise we can have the particular templates using। इससे क्या होता है हमारा, it is going to save our time। हर बार हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, the name of the company from which we are going to send the data और from which we are going to send the letter। so यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो टास्क है वो बहुत सा कम हो गया है। Look here, you can see how easily we can have the particular usages of the templates। Now next, suppose I am going to have another example of the templates, like suppose I am going to have the, ठीक है, ओरिजिनल रिपोर्ट्स हो गए, सब हो गए। ठीक है, एक पर्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं, रेड एंड ब्लैक लेटर लिखते हैं, डियर रिसिपेंट। अभी हम लोग क्या करते हैं, रिसिपेंट का नाम लिखते हैं यहाँ पर, डियर जॉन। ठीक है, अभी यस, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू इंसर्ट डेट हियर। सो हमको क्या करना है, डायरेक्टली डेट पिक करनी है यहाँ से। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट मैंने यहाँ से पिक कर ली। Then I have written the name of the recipient here, I have to write it here। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना लिखते हैं, बिकॉज हम लोगों ने वी हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स। ओके, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो नेम है वो दिख गया है, योर नेम इज दैट, सो आई विल राइट ABC writer and your email here, abc@gmail.com। okay, so likewise we can have the particular letter also। so in this way we can have many of the ready-made templates which are available in your PC। अगर आप लोगों को रेडीमेड यूज नहीं करने हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, जितने आपके इंटरनेट पे भी हम आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फाइल न्यू, यू कैन सर्च ऑन टेम्पलेट, सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू सी दी रिज्यूम, पर यहाँ पर अभी इंटरनेट ऑन नहीं है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। in this way what we are going to do, we are going to use the particular ready-made templates here। okay, I hope you understood this point, how to use the particular template which are already available in our Microsoft Office Word। अभी हम लोगों ने क्या देखा, हाउ टू यूज द पर्टिकुलर टेम्पलेट, पर अभी हम लोग को क्या देखना है, हाउ टू क्रिएट द टेम्पलेट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई विल जस्ट मिनिमाइज ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, आई विल क्लोज दिस, अगेन आई विल ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हियर। Now what I am going to have, I am going to have the blank document। Suppose I am going to write the invoice letter। okay, I will have its format as the rate, and then next what I am going to do, I am going to do the particular formatting here। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉन्ट जो है बढ़ा देते हैं। ठीक है, इनवॉइस लेटर, suppose I am going to write here now particular to particular person here। अब इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, नॉर्मल साइज।
क्या अभी ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर I will just remove some space here and add the particular lines here. To एक common format लिखना है, इसलिए I am not going to write the particular name here. Now I am going to do what? I am going to insert one particular table here. So I am going to insert table. ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट थिंग। आई विल डिलीट दिस थिंग। So now I will insert the particular table here. Insert table। ठीक है, अभी कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, हम अभी इसका हम लोगों ने फॉर्मेट जो है वो डिसाइड करके लेते हैं। यहाँ पर बहुत सीक्रेट टेबल्स अवेलेबल है, तो उसमें से एक मैं फिलहाल ले लेती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू इंसर्ट दी रोज हियर, and what I am going to do, I am going to insert the rows below. Insert rows below, yes, obviously ये बहुत ही इजी होता है। ठीक है, अब एक 4-5 रोज जो है हम लोगों ने इंसर्ट करके लिए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर, देन डेट, देन फॉर्मेट ऑफ और लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और भी पर्टिकुलर्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके पर्टिकुलर प्राइस जो है या फिर एक पर्टिकुलर रेट, उसके बाद हम लोग डालेंगे यहाँ पर क्वांटिटी, एंड लास्टली आई एम गोइंग टू इंसर्ट द टोटल हियर। इंसर्ट, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम से ऐड कर देते हैं, कॉलम्स टू राइट। ठीक है, एंड लास्टली टोटल। ठीक है, सो लाइकवाइज व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड द पर्टिकुलर थिंग्स हियर। ठीक है, ओके, इसको हम लोग बाद में सेव करेंगे। इनवर्स जो है मैं सेंटर में ले लेती हूँ। इसको सेव कर दिया मैंने, अभी नहीं, पूरा कंप्लीट करने के बाद इसको सेव करते हैं। तो अभी एक पर्टिकुलर कंपनी है, आई विल राइट सम नोट हियर। All the particulars are checked by both sender and receiver. That is, instead of writing sender, we can write it buyer and seller will be more better. Buyer and seller. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर नोट हो गया। अभी हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दिया, बोल्ड कर दिया, इसको इटैलिक कर दिया, इसकी साइज थोड़ी सी कम कर दी। ओके, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अभी ये सब हम लोग हटा देते हैं। अभी उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इनवॉइस लेटर टू पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड टोटल लास्टली। ओके, फ्रॉम जो है किसका है, वो सेलर का होता है, राइट। इसका फॉन्ट जो है अभी हम लोग चेंज कर देते हैं। आई डोंट नो दिस रेड फॉन्ट हियर। ओके, नो प्रॉब्लम, नाउ इट इज चेंज फ्रॉम। अभी आपकी कंपनी जो है वो फिक्स है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस डैश, दैट इज XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आई विल रीड द लास्ट लाइन। अभी देखिए, इसका सेव करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ज्यादा भी नहीं, जस्ट थोड़ा सा। ठीक है, अभी ये इनवॉइस लेटर हमारा पूरा बन गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे ना। अभी सेव करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं, तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, देखिए फॉर्मेट जो है इसका क्या होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, बट हमको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, टेम्पलेट चाहिए।
तो हम लोग क्या करेंगे उसका, यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट के टाइप्स होते हैं। वर्ड 1907 टू 2003, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि वर्ड 97, 2003 और 2010 के टेम्पलेट्स थोड़े से डिफरेंट थे। दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट, अभी हम लोगों को ये वर्ड टेम्पलेट में सेव करना था कि हम लोग क्या कर सके, इसको इम्पोर्ट कर सके whenever we are going to use this particular thing. Then next one is what PDF is there, then XPS document is there, then web page is there. हम लोगों को अभी ये बाकी सारे यूज नहीं करने हैं. Rich text is there, plain text is there. So I will use it as the word template. Okay, invoice letter format हम लोग देखेंगे, ठीक है। टाइप होने से कुछ तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे टाइप होते हैं, तो ये हमारे लिए हमारा टाइप 1 है, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसको सेव कर दिया। नाउ वी हैव डन विथ क्रिएटिंग आवर ओन टेम्पलेट। अभी हम लोगों ने हमारा खुद का टेम्पलेट बना दिया, अभी हम लोग वो यूज करेंगे, ठीक है। आई विल ओपन द न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट हियर। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू हैव द मोर टेम्पलेट्स। देखिए अभी यहाँ पर हमारा टेम्पलेट आता है, यानी मोर टेम्पलेट्स में देखिए ये जो है हमने अभी यूज की वाले टेम्पलेट्स, अभी यूज ना की वाले टेम्पलेट्स में से हम लोग देखते हैं। यस, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, ये देखिए ऑफिस, यहाँ पर दो ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज ऑफिस एंड सेकेंड वन इज पर्सनल। देखिए इसका मतलब क्या हो, ऑफिस के जो है वो इनबिल्ट खुद के हैं, वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ये इतने अपने ऑफिस के हैं। और पर्सनल मैंने कितने बनाए हैं अपनी आपके सामने ही, जस्ट आई हैव यूज्ड ओनली वन, ठीक है। तो फिर वो टेम्पलेट जो है यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली इन्वॉइस लेटर आ रहा है, वो पर इन्वॉइस लेटर टाइप 1 नहीं आ रहा है, वो क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट में आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट में अपना इन्वॉइस लेटर आ रहा है। अभी सपोज आई एम गोइंग टू राइट टू दी ABC लिमिटेड, ठीक है। अभी ठीक से फॉर्मेटिंग ठीक से नहीं किया है मैंने, नो प्रॉब्लम। be serial number 1 and 2. Suppose I am going to write a particular date 6/7/2021 and 7/7/2020. Particular name, suppose there is some furniture is there, then table, and next one is the chair. अभी इसका रेट हो गया 10,000, दैट इज 10K, एंड इसका रेट हो गया सपोज 4,000 के, मैं चेयर ले ली, ठीक है। अभी टेबल ले लिया एक, सो टोटल होगा इसका 10,000, और चेयर ले ली मैंने 2, तो इसका टोटल हो गया 8,000। और लास्टली हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर टोटल जो है अपने हिसाब से ऐड करेंगे, तो फिर किसका टोटल क्या हो गया फाइनली 18,000, ठीक है। लाइकवाइज आई एम गोइंग टू सेव दिस इनवॉइस लेटर टू द डॉक्यूमेंट्स, ओके। अभी इसका नाम क्या होगा, इनवॉइस लेटर नहीं होगा, इनवॉइस ऑफ ABC Limited, then save. Now I will check the contents here. अभी देखिए यहाँ पर अभी क्या 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 रहेगा डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पर हम लोगों ने अभी चाहिए, देखिए पहले यूज क्या हुआ था, इनवॉइस ऑफ ABC लिमिटेड, देखिए वो आ गया है। और अपना टेम्पलेट जो है वो क्या पर है, कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स इनवॉइस लेटर फॉर्मेट, ये देखिए जो है अपना ओरिजिनल टेम्पलेट फॉर्मेट है, ओके। सो इजीली वी कैन क्रिएट द टेम्पलेट एंड यूज दिस टेम्पलेट आल्सो। अभी इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देता है। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द फाइल, देन वी आर गोइंग टू 3 ऑप्शंस। पहले काम कर लेते हैं, हम लोग जितने भी सारे टेम्पलेट्स हैं वो क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, वर्ड फिर से ओपन करेंगे, ओके। पहले जितने भी थे हम लोगों को सेव करने के लिए पूछ रहे हो, ओके आई एम नॉट गोइंग टू सेव दैट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू द ऑप्शंस हियर, ठीक है। हम लोगों ने फिर से क्या किया, फिर से हमें दिखा दी हूँ आप लोगों को, फाइल में जाइए और गो टू द ऑप्शंस। अभी ऑप्शंस में जबकि हमको क्या करना है, देखिए कस्टमाइज रिबन बोल के एक ऑप्शन है, और उसमें ये डेवलपर वाला ऑप्शन है, वो मैंने चेक कर दिया एंड ओके। सो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए डेवलपर का टूल बार है, जो है डेवलपर का विंडो जो है वो आ गया है।
ना अभी इसका यूज क्या करना है, देखिए अभी हम लोगों को क्या करना है, देखिए जैसे कि हम लोगों ने इनवॉइस में जो है डेट बार बार यूज करते हैं हम लोग, या फिर किसी को लेटर लिखना है या फिर कोई रेज्यूमे होता है तो वहां पर डेट्स जो है बार बार यूज कर सकते हैं। तो फिर एक पर्टिकुलर डेट का भी हम लोग क्या बना सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर के हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन जो है डिजाइन मोड्स यूज करेंगे, इसमें सब हमको यूज नहीं करने हैं, जस्ट कुछ हम लोग क्या करेंगे, इसके यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या चाहेंगे, डिजाइन मोड में जाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, रिच टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट कंट्रोल है, उसके बाद प्लेन टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल है, उसके बाद पिक्चर कंटेंट कंट्रोल है, उसके बाद क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक गैलरी कंटेंट कंट्रोल है। अभी हम लोग इसमें से कुछ कंटेंट कंट्रोल जो है यूज करेंगे। अभी पिक्चर्स जो है हमको यहाँ पर यूज करने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यस वी आर गोइंग टू हैव द टाइटल ऑफ दिस टाइटल पिक्चर। यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी है टाइटल पिक्चर जो है वो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन इंसर्ट सम डेटा हियर आल्सो। ओके, एंड फॉर्मेट पिक्चर करेंगे, इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज जो है हम लोगों ने ऐड की हुई थी वो देखेंगे। सो नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेंज पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। हम लोगों ने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर फाइल से हम लोगों ने पिक्चर ले लिए। आई एम गोइंग टू इंसर्ट दिस सनफ्लावर। ठीक है, इसका नाम क्या है, टाइटल पिक्चर है। अभी उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेंटर में ले लेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर अलाइनमेंट टू द सेंटर। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे देखिए, नेक्स्ट वन व्हाट आई एम गोइंग टू इंसर्ट। अभी मैं क्या करूंगी, एक पर्टिकुलर कॉम्बो बॉक्स लूंगी या फिर एक लिस्ट आइटम ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, अभी वहां पर हम लोगों को क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। देखिए मैंने क्या फिर से क्या किया, आई हैव सेलेक्टेड कॉम्बो बॉक्स फ्रॉम द डेवलपर टूल्स एंड देन नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, उसमें से हमको एक प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाना है। तो फिर चलिए अभी उसका टाइटल हम लोग लिखते हैं। अभी सपोज ये क्या है, एक पर्टिकुलर फ्लावर्स पर हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर रिपोर्ट बना है, फ्लावर टाइप से कुछ तो हम लोग लिख देते हैं इसका टाइटल। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एक पर्टिकुलर आइटम डालना है, चूज एन आइटम। सपोज मैंने डाल दिया सनफ्लावर। ओके, देन नेक्स्ट व्हाट मैंने डाल दिया, सपोज रोज। देन नेक्स्ट मैंने डाल दिया सपोज लिली। नेक्स्ट आई हैव एडेड जैस्मिन। ओके, इसका टैग choosing the flower type and okay। ठीक है, यहाँ पर आप हम लोग क्या कौन से डिजाइन मोड में है। नाउ इफ आई डीसेलेक्ट दिस, देखिए यहाँ पर क्या दिखता है, फ्लावर टाइप्स जो है वो दिखते हैं। अभी चूज एन आइटम, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सनफ्लावर, देन रोज, देन लिली। अभी इसका यूज कैसे करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। मैं फिर से डिजाइन मोड में जाती हूँ और अभी मैं क्या करूंगी, now I am going to have the next डेट पिकर कंटेंट कंट्रोल। उसके बाद हमारे पास है रिपीटिंग सेक्शन कंटेंट कंट्रोल एंड लेगेसी कंट्रोल। एक्टिवेस कंट्रोल्स आर देयर, तो थोड़े से एडवांस्ड होते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, डेट पिकर। देखिए क्लिक और टैप टू एंटर द डेट। अभी इसके प्रॉपर्टीज में हम लोग जाएंगे और इसका टाइटल करेंगे सेलेक्ट डेट। नहीं, हम लोग इसका टाइटल रखते हैं डेट और टैग होगा सेलेक्ट डेट। ठीक है, और इसका फॉर्मेट जो है देखिए यहाँ पर शो एज बाउंडिंग बॉक्स। ओके, इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर देंगे और इसका फॉर्मेट डिस्प्ले द डेट लाइक 6 जुलाई 2021 लाइकवाइज ट्यूसडे 6 जुलाई, देन 6/7/2021। इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ हमारे पास क्या आता है, टाइम भी आता है पर्टिकुलर, आप वो भी ले सकते हो। अभी मैं ये फुल नहीं लेने वाली हूँ, सिंपल में ले लूंगी विद टाइम। ओके, लोकल कौन सा है अपना, इंग्लिश इंडिया है, कैलेंडर टाइप जॉर्जियन है एंड डेट एंड टाइम। ओके, ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन मोड से बाहर जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक और टैप टू एंटर द डेट हियर। ओके, सो इस फॉर्मेट में हम लोगों ने क्या कर दिया, डेट सेलेक्ट कर दिया। देखिए जैसे कि हम लोगों ने रेज्यूमे का टेम्पलेट देखा था, तो फिर वैसे ही हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर ये टेम्पलेट ले लिया।
ओके, यहाँ पर चूज एन आइटम लिख लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद एक चेक बॉक्स जो है वो कैसे यूज करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चेक बॉक्स कंटेंट कंट्रोल। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके डिजाइन मोड में जाएंगे, देन इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। इसका टाइटल क्या है, सपोज ट्रू और फॉल्स, इसे कुछ तो हमको लिखना है, सेलेक्ट वन, इसे कुछ तो हम लोग इसमें से ले लेंगे एंड टैग इसको रहेगा। ठीक है, चेक सिंबल जो है वो ऐसा है हमारा, हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं पर्टिकुलर चेक सिंबल को। यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स हैं, उसमें से हम लोग कोई भी एक चेक सिंबल यूज कर सकते हैं। ओके, जस्ट यू कैन सी हियर, यहाँ पर कौन से हैं, अरेबिक है, बहुत सारे चेक सिंबल्स हैं, हम लोग उसमें से यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर हमने रिसेंटली यूज सिंबल्स जो है वो देखे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, चेक सिंबल्स को प्लस ले लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर चेक सिंबल आ गया एंड उसका टैग जो है सेलेक्ट वन। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका डिजाइन मोड जो है ऑफ कर देंगे। देखिए ये हो गया चेक्ड और ये हो गया अनचेक्ड एंड वी आर गोइंग टू सेलेक्ट वन। ओके, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चेक बॉक्स ऐड कर सकते हैं और वी कैन ऐड सम डेटा हियर, दैट इज सपोज आई एम गोइंग टू राइट ट्रू, checked and unchecked here. We can write like that. Here is checked and here is unchecked. So अभी ये क्या हुआ, एक सिंपल टेम्पलेट बन गया है। अभी इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिच टेक्स्ट बॉक्स भी है वो यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखिए रेज्यूमे काम करते हैं, बहुत ही पास हो गए इसके, I will delete it, then I will write it, type of resume. Okay, now what I am going to do, I am going to save it as the particular what word template. Okay, and I will save it like I will say as some trial version. Okay, I will save it. Now after saving I will close it here and I will open the particular blank word document here. ठीक है, ये ओपन कर दिया। अभी मैं क्या करती हूँ, न्यू, ओके, पर्सनल में जाऊंगी और यहाँ पर आप लोग देखिए एक ट्रायल का जो है वो आ गया है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं डॉक्यूमेंट है एंड वी कैन हैव द पर्टिकुलर थिंग्स हियर। ओके, वी कैन चेंज द पिक्चर फ्रॉम फाइल हियर एंड वी कैन ऐड द पिक्चर हियर, देन चूज एन एटम। हियर मैंने क्या कर दिया, सपोज सनफ्लावर चूज कर लिया। डेट जो है यहाँ पर मैंने कर ली सपोज 8th एंड सम ट्रू इज चेक टाइप ऑफ रिज्यूम एंड I will save it. Okay, I am going to save it in document. Try to. ऐसे कुछ था and I am going to save it. Okay, just I will go to the documents, then documents and trial 2. Okay, likewise we have saved here. Okay students, I hope you understood this thing, that is how to use the template, how to use the predefined templates, then how to create the templates. एंड यस ऑब्वियसली हाउ टू यूज डिफरेंट टेम्पलेट्स फॉर्मेटिंग। अगर हमको खुद का टेम्पलेट का फॉर्मेट देखना है तो उसमें डिजाइन मोड कैसे यूज करते हैं, और डिजाइन मोड यूज करके हम लोग रिच टेक्स्ट बॉक्स जो है, उसके बाद डेट टाइम पिकर्स जो है वो कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वी हैव सीन पर्टिकुलर चेक बॉक्सेस आल्सो एंड यूजिंग द ड्रॉप डाउन लिस्ट आल्सो. I hope you understood today, and the book which I have referred for today's lecture, Information Technology by Sumita. Okay, that's all for today's lecture, students. Thank you. Till then, till the next lecture, I am taking you leave. Okay, bye. So at the end of the session, let me tell you about the Mega Launch Mondays. It is one of the Unacademy subscriptions. So we are going to have the new batches for doubt clearing and NCERT exercises. And the batch will start from the 5th of July 2021. And its duration is up till the 30th of November 2020. यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फॉर CBSE क्लास 10
that is target batch 2022. Yes, and it is going to cover the full NCERT syllabus with skill teachers. देखिए हमारी बैच जो है वो स्टार्ट होगी 5th of July 2021 से and it will end on 30th November 2021. So we are going to have subjects like SST, that is social sciences, आपका मैथ्स भी इसमें क्लियर हो जाएगा, साइंस, then English and Hindi also. So likewise, we are having the target batch 2022 for class 9th also. So here also we are going to cover full NCERT syllabus. जिसे क्लास 10th में है वैसे ही आपका क्लास 9th में भी फुल NCERT syllabus जो है वो कवर है. सो यहाँ पर भी आपके पास रहेंगे SST, देन मैथ्स, देन साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी कोर्स. So you can subscribe for class 9 and get 10th, 11th and 12th subscription free. Likewise, you can subscribe for class 10 and you can get the subscription for the class 11th and 12th for free. So हमारी अनअकैडमी की जो बैचेस है these will be new batches every Monday. Every Monday आपकी new batches जो है वो start होंगी for class 9th also and for class 10th also. This will be called as the class target 2022 batch, जहाँ पर हमारा full NCERT syllabus जो है वो cover हो जाएगा. So these are nothing but our unacademy batches for class 9th and class 10th. So I will repeat again, that is if you are going to subscribe, आप लोग suppose 9 का subscription लोगे तो आपको क्या रहेगा, उसके साथ क्लास 10th, 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा. सो 9th के बच्चों के लिए बहुत ही एडवांटेज रहेगा. विथ 9 आप लोग क्या कर सकोगे, 10th, 11th एंड 12th का सब्सक्रिप्शन ले पाओगे. वैसे ही अगर आप लोग क्लास 10th का सब्सक्रिप्शन लोगे उसका भी आपको एडवांटेज रहेगा. आपको उसके साथ क्या करेगा, क्लास 11th एंड 12th का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी फ्री में मिल जाएगा. तो जस्ट ट्राई टू सब्सक्राइब इट एंड get the subscription free for class 10th and 11th and 12th. For 9th and for 10th, you can have the subscription of the 11th and 12th absolutely for free. So, अभी मैं आपको अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक जो है उसके बारे में बताऊंगी. ओके, so plus is what your basic plan to get started. And plus का जो advanced है वो क्या है, आइकॉनिक. Yes, you can take your CBSE preparation to the next level with personal mentor. Yes, correct. We are having the personal mentors for the आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. देखिए पहले हम लोग प्लस के बारे में बात करते हैं. प्लस में आपको मिलेंगे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी मिलेंगी ऑन आवर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. उसके बाद आपके लिए हमेशा लाइव टेस्ट एंड क्विजेस लेंगी वीकली, मंथली. Then you are going to have the structure course and PDFs. Yes, the PDFs and course, that is notes, will be shared by the particular educators. That will be the more benefit for you. Then next one is the iconic subscription. So जैसे कि मैंने अभी बताया आइकॉनिक जो क्या क्या रहेगा, प्लस का एडवांस रहेगा. ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे. यहाँ पर भी आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एज वेल एज द यूट्यूब आल्सो. यस, प्लस में भी आपको यूट्यूब के लिए अनअकैडमी के लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे ही आइकॉनिक मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहेंगे यूजिंग मेंटी क्विजेस, और वी आर हैविंग द डाउट सॉल्विंग सेशंस आल्सो. एंड यस, ऑब्वियसली आइकॉनिक में भी आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स एंड पर्टिकुलर पीडीएफ्स आल्सो, दैट इज टोटल स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मिलेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हियर. ठीक है, बस आइकॉनिक्स में और एडिशनल क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटर रहेगा. यस, दैट इज इंडिविजुअल मेंटर विल बी देयर टू अटेंड योर ऑल doubts and to solve your all doubts. That is live doubt solution भी आपके लिए रहेगा. Yes, and yes, obviously parent का जो है आपके directly contact रहेगा, that is parent connection will be there. And then next will be you will have your own personal study planner. That will be the benefit of the iconic selection. And अगर आप लोग referral code use करते हो तो you by using my referral code, that is TDLA, you are going to have the 10% off. So देखिए अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज हाउ टू यूज द प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. देखिए अभी समझो आप लोगों ने 9 का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके साथ 9, 10, 11 और 12 का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है फॉर दी प्लस. ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने 9, 10, 11 और 12 का आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लिया
तो उसके साथ आपको मिल जाता है होल बंच फ्री। देखिए अभी आप लोग अगर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको पड़ेगा 7,500, 7,500 में। अगर 6 मंथ का करोगे तो 10,000, 12 मंथ्स फॉर 15,000, देन 15 मंथ्स फॉर 18,000, और अगर 24 मंथ्स का लोगे तो वो रहेगा आपका 25,000 का। So these will be all the subscriptions for the Plus. Okay. So likewise, Plus we are having Iconic, that is it is advanced version of the Plus subscription. देखिए अभी Iconic में आपको क्या रहेगा, if you are going to for the 3 months subscription आपको पे करने पड़ेंगे 12,000. अब if you are going for 6 months subscription आपके लिए रहेंगे 17,000. Likewise, if you go for 12 months, you will have the 28,000. देखिए आप लोग जितना ज्यादा यूज करेंगे यानी कि जितना ज्यादा मंथ्स का आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे उतना ही क्या रहेगा आपको डिस्काउंट भी अच्छे से मिलेगा। सो यहाँ पर आप लोग अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको रहेंगे 48,000. सो लाइकवाइज यू आर गोइंग टू हैव द सब्सक्रिप्शन फॉर द 9, 10th, 11th, 12th प्लस एंड 9, 10th, 11th, 12th आइकॉनिक। सो उसके बाद अगर आप लोग क्लास 10 के लिए जाओगे तो क्लास 10 के लिए 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। सो अगर हम लोग प्लस के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर 3 मंथ्स यू हैव टू पे 7,500, देन उसके बाद फॉर 6 मंथ यू हैव टू पे 10K, दैट इज 10,000, फॉर 12 मंथ्स यू कैन पे फॉर द 15,000। सो वैसे ही आप लोगों को क्या क्या रहेगा, 15 मंथ्स का 18,000 के लिए, 18 मंथ्स का आपके लिए रहेगा 20,000, 24 मंथ्स का रहेगा 25,000 के लिए, एंड 36 मंथ का 32,000 के लिए। सो अगर आप लोग 10th में हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि आप लोग 11 का और 12 का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ ले सकते हैं। सो वैसे ही अगर आप लोग आइकॉनिक के लिए जाओगे, इफ यू गो फॉर द आइकॉनिक, देखिए यहाँ पर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है वो रहेगा 12,000 के लिए, देन 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 17,000 के लिए, देन नेक्स्ट वन इज 12 मंथ्स फॉर 28,000, then 15 months for 32,000, then 18 months for 35,000, then 24 months for 48,000, and lastly 36 months for 66,000. So I would suggest if you are going for the 9th, then you can have the benefit of both 9, 10th, 11th and 12th. अगर आप लोग 10th में जाओगे, 10 का सब्सक्रिप्शन आप लोग जोगे जो 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 11th and 12th का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ मिल जाएगा। So and you can use my referral code also with the flat 10% off discount. So now Unacademy is going to have the scholarship worth of rupees 1 crore plus in month of the July. Yes, we are going to have the Unacademy compact. यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, we are going to have weekly scholarship tests for CBSE class 9th and 10th students. So specifically for 9th and 10th के जो बच्चे हैं वो लोग ये scholarship test के लिए अप्लाई करेंगे। So ये जो एग्जाम रहेगी दैट इज दिस कॉम्बैक्ट विल बी अवेलेबल और इट विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, इन बोथ लैंग्वेज इट विल बी अवेलेबल on the date of the 4th July at 11 AM. So you can enroll now in the link which is given in the description box. So अभी Unacademy Combat स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोग क्या 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 जीत सकते हो। ओके, इट इज योर फॉर्मूला फॉर सक्सेस। फर्स्टली आपका स्टडी अच्छे से हो जाएगा। इफ यू आर गोइंग फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट देन इट विल बी हैव मोर एनकरेजमेंट फॉर यू टू स्टडी मोर एंड इट विल बी फन लर्निंग। सो यहाँ पर इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 crore। यस, बिल्कुल सही। एंड द एग्जाम टाइम विल बी 45 मिनट्स। आपके जो एग्जाम टाइम रहेगा वो रहेगा 45 मिनट्स का। इट विल बी हैविंग द 30 क्वेश्चंस। देखिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे 45 मिनट्स के लिए। ओके, एंड यू कैन हैव दिस लाइव टेस्ट फ्री। ओके, इसके लिए कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं करना है। यू कैन हैव दिस फ्री लाइव टेस्ट ऑन योर simple Android phone. If you are having a laptop, you can use the laptop also. And yes, obviously tests are going to have in Hindi and English as per your convenience. So just remember this test will be there for only for CBSE class 9 and just try to note down the date. That is what 4th July at 11. Okay, I hope you understood what is this Unacademy Combat Scholarship Test. So you can have the 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription if you are going to use my referral code, that is TD Live. Okay, so
And yes, obviously you can download the Unacademy app, that is totally for free, and you can use its all features for free. And you please use my referral code, that is TDLove, if you are going to download the particular Unacademy education app. So students, that's all for today. We will meet in the next lecture, Unacademy. Let's crack it. Till then,